Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and learning the given tasks. Today we are here with our sixth lecture. In this lecture we have divided the chapter into two portions. We will get to know about the first half of the portion today and the rest of the portion in the seventh lecture. So students, be attentive while listening the story. After then, you will easily pick the main abstract of the lesson. As students, I have already discussed with you the syllabus of first term, and you know that we have covered 3 lessons and 1 poem. First lesson was Pippi Longstocking, second was Pip meets a convict, third Anansi and Five, and 1 poem which we have covered was From a Railway Carriage. But today we are here with our last lesson of the first term, that is the Ambassador's Disguise. We are with the lesson Ambassador Disguise. So today we are we will read Ambassador's Disguise lesson. Okay, in this slide, okay students, as you people are seeing the picture of a palace, just to make it comprehensive, I have given the picture of a palace so that you may easily identify and recognize that king and princess used to live in the palace. And the topic of the lesson also reveals that somebody changed their appearance and entered in the palace. So let's see what had happened in the story. But before moving ahead, I would like to discuss the characters first. So that you may easily grasp the main idea of the lesson. Slide, if I will discuss the characters, so you will be able to easily grasp the lesson that what the story is all about. In the story, and story revolves around a palace, है ना. पैलेस के जो है अंदर की स्टोरी है ये. एंड देयर आर 4 कैरेक्टर्स. हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ प्रिंस वेल्दमीर. प्रिंस वेल्दमीर जो हैं वो फर्स्ट कैरेक्टर है. ही इज़ अ किंग ऑफ कीव. वो कहाँ के किंग है? कीव के किंग है. तो ही इज़ अ किंग ऑफ कीव. देन सेकंड कैरेक्टर इज़ ज़बावा. ज़बावा इज़ द नीस, यानी कि भतीजी हैं ज़बावा किंग की. किंग प्रिंस वेल्दमीर की भतीजी हैं ज़बावा. तो ज़बावा जो हैं वो प्रिंसेस हैं. एंड देन ये किंग जो वेल्दमीर हैं उनकी प्रिंसेस हैं, यानी कि उनकी भतीजी नीस, वो हैं ज़बावा. देन स्टार कटरीना हैं. कटरीना जो हैं वो वाइफ हैं स्टार गॉर्डनविच की. एंड शी हैड केम टू सेट हर हस्बैंड फ्री फ्रॉम द डेंजन. और डेंजन से उनके अपने हस्बैंड को फ्री करने के लिए वो आई थी, यानी कि अपने हस्बैंड को छुड़ा सकें. एंड फोर्थ इज़ स्टार्व गॉर्डनविच. स्टार्व गॉर्डनविच फोर्थ कैरेक्टर हैं जिससे जो है किंग एंग्री हो गए थे, और एंग्री होने की वजह से उन्हें डेंजन में बंद कर दिया था. तो ही वॉज अ नोबल. स्टार्व गॉर्डनविच वॉज अ नोबल मैन. देन so I have told you 4 characters. First is Prince Veldemir, second is Zabawa, third is Katrina, fourth is Starv Gordnovich. Now let's see what is in the story and what is the story all about. ठीक है बेटा, तो स्टोरी में क्या है हम देखते हैं ये. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ़ यू विल लिसन इट वेरी अटेंटिवली. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अटेंटिवली सुनेंगे ना, then that will be a very interesting and very amazing story. Okay, now story starts with the in the palace. Story is in hell is in the palace. And first of all the chapter name is the Ambassador's Disguise. यानी कि कोई जो है
एम्बेसडर होता है जो बाहर से कहीं से किसी और मुल्क से आपके वहाँ आए। तो डिस्गाइज माने अपना अपीयरेंस चेंज करना, अपने आपकी अपीयरेंस चेंज करना। सो एम्बेसडर जो है कहीं किसी और जगह से आया था अपनी अपीयरेंस चेंज करके। अब क्यों आया था, किस लिए आया था, वाई ही हैज़ केम एम्बेसडर, वाई एम्बेसडर चेंज हिज डिस्गाइज, वो लेट्स सी के व्हाट हैड हैपेंड। So many years ago, in the palace of Prince Valdemir, a great prince of Kiev, many nobles were together in the palace, and many of them were making boast. Some were telling about their wealth, some showed off about their strength, and rest were talking about their wisdom and their trusted horses. One nobleman said nothing, and that was Star Godnovich. अच्छा बेटे, स्टोरी इस तरह से कि कुछ साल पहले की बात है जब प्रिंस वेल्दमीर के पैलेस में बहुत सारे नोबल मैन जमा थे। तो उस वक्त प्रिंस वेल्दमीर के वहाँ जो जितने नोबल्स थे, तो उन्होंने किसी ने, जैसे हम भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी बोलते हैं मैं पढ़ाई में यूँ अच्छा हूँ, कोई बोलता है मैं बड़ा ज़हीन हूँ, कोई बोलता है मैं मेरे पास पैसा बहुत है, कोई बोलता है मैं अमीर हूँ, कोई बोलता है मेरे पास गाड़ी है। इस तरह से वहाँ प्रिंस वेल्दमीर के भी पैलेस में बहुत सारे नोबल्स आए थे और वो बूस्ट कर रहे थे, यानी कि अपनी अपनी तारीफ़ें बिखेर रहे थे। वो कह रहे थे, कोई कह रहा था मैं बहुत अमीर हूँ, कोई कह रहा था मैं बहुत ताकतवर हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे पास बहुत, कोई कह रहा था कि मेरे पास बहुत अकल है, कोई कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारे जो है हॉर्सेस हैं। सो एक नोबल ऐसा था जिसका नाम स्टार गॉडनविच था। उसने ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। ही सेड नथिंग। तो क्यों वो चुप रहा और वो क्यों खामोश था, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन बट आपकी स्टोरी इस तरह से है कि बहुत सारे नोबल्स आपके वहाँ पैलेस में, कीव में, जहाँ प्रिंस वेल्दमीर कीव में रहते थे, वहाँ बहुत सारे नोबल्स जो हैं वो अपनी अपनी तारीफ़ें कर रहे थे, पैलेस में मौजूद थे और अपनी अपनी तारीफ़ें कर रहे थे। एंड they were counting their जो है boosts, they were counting up, and for that reason many were talking so and so things, but one of the noble Star Godnovich said nothing. Okay beta, this is the starting of the story. Now let's see what had happened more. So Prince Valdemir asked Star that why you are silent and you said nothing. स्टार से क्या पूछा प्रिंस वल्दमीर ने कि क्यों आप चुप हैं, क्यों खामोश हैं, आपने क्यों कुछ नहीं बूस्ट किया, क्यों आपने कुछ नहीं कहा। आफ्टर आस्किंग स्टार टोल्ड अबाउट हर वाइफ कटरीना, और जब पूछा प्रिंस वल्दमीर ने तो स्टाफ ने अपनी वाइफ कटरीना की बूस्टिंग की, यानी कि उसके बारे में बड़ाई की, उसके बारे में बताया। एंड ही मेड प्रिंस काउंट द क्वालिटीज़ ऑफ हर वाइफ कटरीना, और उसने अपने प्रिंस को अपनी वाइफ की क्वालिटीज़ को काउंट करवाया कि ये क्वालिटीज़ है मेरी वाइफ में। फॉर दैट रीज़न प्रिंस गॉट एंग्री विद स्टार, और इस वजह से प्रिंस जो है स्टार से एंग्री हो गया। क्यों एंग्री हो गया? क्योंकि उसने बोला कि आपका जो है मेरी वाइफ से भी मैच नहीं है, यानी कि मेरी वाइफ इतनी वो है होशियार, कि इतनी क्लेवर है, इतनी इंटेलिजेंट है कि आपका भी उससे कोई मैच नहीं है। तो इस पे तो प्रिंस वल्दमीर जो है ही गॉट एंग्री एंड ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू टेक हिम टू प्रिजन, और उन्होंने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि उनको जेल में ले जाओ स्टार गॉडनविच को, और उसे बंद कर दो वहाँ पर। एंड गिव हिम ओट्स एंड वाटर टू ईट, और दलिया और पानी जो है वो उसे दो खाने के लिए। इन द प्रिजन स्टार वॉज थिंकिंग दैट ही सर्व द प्रिंस फॉर 9 years एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज हिम। ही वॉज सो सैड। तो स्टार ने वहाँ डेंजन में क्या सोचा कि जो है मैंने 9 years जो है सर्व किया प्रिंस को, बट स्टिल वो उसने मुझे जो है मेरी खिदमत का ये सिला दिया है। उसको सोच के ये स्टार गॉडनविच बहुत सैड हुआ और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बट जब उसने अपनी वाइफ की क्वालिटीज़ जो है उसे गिनवाई, तो प्रिंस जो है
वो बहुत एंग्री हो गए और उन्होंने उससे स्टार गॉर्डनविच को प्रिजन में बंद कर दिया। अच्छा, स्टार गॉर्डनविच वॉज बीन सेंड टू द प्रिजन, और किसके ऑर्डर पे? प्रिंस वेल्दमीर के। किसके ऑर्डर्स पे? प्रिंस वेल्दमीर ने जो ऑर्डर्स दिए थे उस ऑर्डर्स पे स्टार गॉर्डनविच को प्रिजन में बंद कर दिया था, ठीक है, सेंड कर दिया था प्रिजन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड व्हाट हैपेंड व्हेन कटरीना हर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड विद हर हस्बैंड, उसको जब पता लगा कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है, शी ट्राइड टू विजिट अनदर डे बट द गार्ड्स डिड नॉट अलाउड हर टू एंटर इन द पैलेस। तो दूसरे दिन उसने उसकी फॉलोइंग डे जो है उसने वहाँ विज़िट किया पता करने के लिए कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है इन द पैलेस। वो पैलेस में आई ना, तो लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर एंटर नहीं होने दिया। अब कटरीना क्या करती जब गार्ड्स ने एंटर नहीं होने दिया कटरीना को? तो कटरीना थॉट ऑफ अ प्लान, और कटरीना ने एक प्लान बनाया। शी आस्क्ड फॉर द हेल्प she asked for the help with the archers, musicians and chess masters, और आर्चर्स से हेल्प मांगी, म्यूजिशियन से हेल्प मांगी और चेस मास्टर्स से हेल्प मांगी, और सारे 30 लोगों को जमा किया। एंड शी प्रिपेयर्ड द ट्रूप ऑफ आर्मी, और उसने एक आर्मी ट्रूप जो है ना, एक बड़ी सी गैंग तैयार की आर्मी की। और फिर उसने क्या किया? ऑन द वेरी नेक्स्ट डे शी टुक ऑल ऑफ देम अलॉन्ग विद हर, और वो सब को अपने साथ कीव ले गई। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने एक आर्मी इसलिए सेट की ताकि एक आर्मी होगी तो वो जो है किंग प्रिंस वेल्दमीर जो हैं वो डर जाएंगे इस बात से कि कोई अटैक करने के लिए हमें आ गया है, और वो जो है स्टार गॉर्डनविच को छोड़ देंगे इस तरह से। तो उसने जो है वो इस बात को लेकर उसने एक प्लान तैयार किया, और 30 लोगों को करके 90 लोगों को लेके गई अपने साथ वहाँ कीव में प्रिंस वेल्दमीर के पास। नाउ लेट्स सी व्हाट हैड हैपेंड मोर। So when Katrina arrived at the palace, she bowed to the prince and asked him to pay tribute or her army will attack the city. Then after some while, Katrina told Prince Valdemir that either pay tribute or let him marry her niece Zabawa. So Prince Valdemir was too frightened in this manner. अब इसमें क्या है बेटे कि कटरीना जो है वो जब पहुंची अपने सारी आर्मी को लेकर, यानी म्यूजिशियंस, चेस मास्टर्स, आर्चर्स, इन सब को लेकर जब पहुंची तो वो अकेली पहले तो पैलेस की तरफ जो है अकेली गई, और उसने जो है पैलेस में जब जाकर प्रिंस को बो डाउन किया, यानी कि सर से झुककर सलाम करते हैं ना, वैसे बो डाउन किया, और उन्हें कहा कि आप जो है हमें मतलब वो जो मुआवजा होता है ना, ट्रिब्यूट दिया जाता है, वो दें, या फिर हम मेरी आर्मी जो मेरे साथ आई है वो आपके सिटी को अटैक करेगी, आपके सिटी को अटैक कर देगी। तो पहले ज़माने में बेटा ऐसा होता था कि फ़िदिया लिया जाता था, वो किया जाता था और अटैक किया, वरना अगर नहीं मिलता था ये सब तो उस सिलसिले में अटैक कर दिया जाता था। तो इसी तरह कैटरीना ने बोला कि या तो मुझे जो है वो अमाउंट दो या फिर मैं आपकी सिटी को अटैक करूं। लेकिन फिर जब प्रिंस वल्दमीर डर गए और बहुत ज़्यादा घबरा गए तो कटरीना ने थोड़ी देर बाद प्रिंस वल्दमीर को ये कहा कि या तो आप ट्रिब्यूट पे दे दीजिए मुझे, या तो पैसे दे दीजिए, या फिर क्या अपनी नीज़ ज़बावा यानी भतीजी को, ज़बावा को मुझसे मैरी करने दीजिए, यानी मैं उससे शादी कर लूँ। सो प्रिंस वल्दमीर वॉज टू फ्राइटेंड इन दिस मैनर, और प्रिंस वल्दमीर तो बहुत ही घबरा गए कि मैं कौन सा मतलब हाउ शुड व्हाट शुड आई हैव टू डू एंड हाउ आई विल मैनेज दीज थिंग्स। वो तो ही वॉज टू फ्राइटेंड। सो ये जो है बेटा ओवरऑल स्टोरी थी कि कटरीना और जो है फिर इसके बाद जब वो फ्राइटेंड हो गए तो इतनी स्टोरी हमने अभी इस वक्त पढ़ी है। बाकी स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम अपनी
नेक्स्ट यानी कि पार्ट बी यानी लेक्चर 7 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इतनी स्टोरी ये है कि 4 कैरेक्टर्स थे और उसमें जो है स्टार्व गॉर्डनविच जो है मेन लीडिंग कैरेक्टर थे। उन्होंने अपनी वाइफ कटरीना के बारे में जो है वो बूस्ट किया था और बूस्ट करने की सूरत में किंग जो है उनसे नाराज़ हो गए। किंग प्रिंस वल्दमीर वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होने की सूरत में उन्हें डेंजर में डाल दिया। जब कैटरीना को पता लगा तो कैटरीना अपने आप को एम्बेसडर डिस्गाइज बनकर और प्रिंस वल्दमीर के पैलेस में आई अपनी आर्मी को लेकर। आर्मी में चेस मास्टर्स थे, आर्चर्स थे एंड म्यूजिशंस थे। तो वो अपनी आर्मी को लेकर आई और उन्होंने प्रिंस वल्दमीर को कैटरीना ने कहा कि आप या तो ट्रिब्यूट दो या फिर अपनी नीज़ जो है ज़बावा उससे मुझे मैरी करने दो। तो ये इतनी आप लोगों को बेटा हाफ स्टोरी मैंने अभी आपको बता दी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर 7 में हम बाकी स्टोरी पढ़ेंगे। आप इस इतनी स्टोरी को समझकर और जो आप लोगों का कॉपी वर्क है वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड 1 वर्ड आंसर्स ये आपको डन करने हैं बेटा और बहुत ध्यान से कीजिएगा। और कॉपी वर्क है ये आप लोगों का, ये आप कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। Okay beta, in this slide what you have to do, you have to copy down all the word meanings given in this slide. First word is dungeon, a dark underground prison. Second is boost, praise. Third word club, a heavy stick, cudgel. Fourth, mounted, to climb. Fifth, interrupted, to make a break. Sixth one is palace, the residence of a person of high authority. So beta you have to copy down these words meaning in your copy so that it will be easy for you to learn it. Okay बेटा, ये आप लोगों को कॉपी डाउन करना है अपनी कॉपीज़ में वर्ड मीनिंग को। जैसे यहाँ हुआ है ये वर्ड मीनिंग कॉपी, ऐसे ही आपको कॉपी डाउन करना है। ओके बेटा। Now in this slide what you have to do, there are some of the questions given in this slide. You have to copy down these questions that are related with the chapter. What were the Russian nobles boasting about? Russian nobles किसके बारे में बातें कर रहे थे, किसके बारे में अपनी तारीफ़ें कर रहे थे? तो the Russian nobles were boasting of their strength, fame, wisdom, wealth and their trusted horses. और वो इन चीज़ों के फेम के बारे में, विजडम के बारे में, वेल्थ के बारे में और अपने ट्रस्टेड हॉर्सेस के बारे में वो बात कर रहे थे। सो बेटा ये आप लोगों को कॉपी डाउन करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द प्रिंस एंग्री विद स्टाफ? स्टाफ से वो एंग्री क्यों हुआ प्रिंस? तो द प्रिंस वॉज एंग्री विद स्टाफ फॉर सेइंग दैट द प्रिंस वॉज ऑफ नो मैच ऑफ हिज वाइफ कटरीना। सो जब उसने स्टाफ ने कहा कि प्रिंस का कोई मैच नहीं है मेरी वाइफ के साथ, तो उस पर स्टाफ जो है वो गुस्सा हो गए, वो प्रिंस गुस्सा हो गए स्टाफ के ये कहने पर। तो जो ये 2 क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में, ये आपको कॉपी डाउन करने हैं अपनी कॉपीज़ में। देन हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके बेटा। ओके, इन दिस स्लाइड देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ हु डिड कटरीना टेक विद हर टू कीव? जब कटरीना ने प्लान किया तो अपने साथ किन किन लोगों को लेके गई थी वो? तो कटरीना टुक अ बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, यानी कि वो तीरंदाज़ों को 30 ले गई थी, 30 चेस मास्टर्स, 30 म्यूजिशियन विद हर टू कीव वो 90 पीपल्स को कीव लेके गई थी एज एन आर्मी। तो ये आपको थर्ड क्वेश्चन कॉपी डाउन करना है, ठीक है बेटा। Now fourth question is who was Zabawa? Zabawa कौन थी? Zabawa was the niece of Prince Valdemir. आप लोगों को पता है ना, प्रिंस वेल्दमीर की नीस थी, भतीजी थी। And the fifth question is what did the Greek ambassador want from the prince? और ग्रीक एम्बेसडर यानी कि कटरीना जो डिस्गाइज होके आई थी वो प्रिंस से क्या मांग रही थी? तो the Greek ambassador wanted the prince to pay the tribute or either agree to let the ambassador marry his niece. तो ये आपको 5 बेटा क्वेश्चंस जो हैं कॉपी डाउन करने, 2, 1 एंड 2 क्वेश्चंस करके आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं।
ये आपको कॉपी डाउन करने हैं अपनी कॉपीज़ में। पहले आप वर्ड मीनिंग कॉपी करेंगे, फिर इसके बाद आपने ये 5 क्वेश्चंस कॉपी डाउन करने हैं। ओके बेटा, ओके। नाउ कम टू वन वर्ड आंसर्स। अब हम वन वर्ड पे हैं। वन वर्ड मीन्स कि एक वर्ड का आंसर देना है आपको, नॉट मोर देन दैट। एक वर्ड से ज़्यादा अगर आप आंसर देते हैं तो वो वन वर्ड नहीं कहलाता, आपको सिर्फ एक वर्ड का आंसर देना है। सो वन वर्ड आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैड बूस्टेड अबाउट हिज वाइफ टू प्रिंस। किसने अपनी बीवी की तारीफ़, अपनी बीवी की बड़ाई की थी प्रिंस के सामने। तो आपको सिर्फ जस्ट नेम आपको उसका मेंशन करना है, उस शख्स का जिसने अपनी वाइफ की प्रेज़ की थी प्रिंस के सामने। ठीक है। नंबर 2, आप लोग को पता है ये बात कि किसने प्रेज़ किया था अपनी वाइफ को। नंबर 2, फ्रॉम वेयर द एम्बेसडर केम। और एम्बेसडर कहाँ से आया था, यानी कि कटरीना कहाँ से अपने आप को डिस्गाइज़ करके आई थी अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए, किस कंट्री से आई थी, तो आपको वो बताना है, वो भी आपको पता है। हु वॉज़ अ क्लेवर एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, क्लेवर और ब्यूटीफुल गर्ल कौन थी जिससे जो है कटरीना मैरी करना चाहता था, जैसे एज डिस्गाइज़ करके जब आया था कटरीना आई थी, तो उस वक्त जो वो जिससे मैरी करना चाहती थी वो क्लेवर और ब्यूटीफुल गर्ल कौन थी, उसका नेम आपको मेंशन करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी थॉरली। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।